Sat Shri Akal friends, welcome to Learn Maths Online YouTube channel. This is lecture number 6 of Sequences and Series class 11th NCERT. In this lecture we will discuss the miscellaneous questions from 19 to 32. So let us discuss question number 19 of miscellaneous. 19th question, the ratio of the arithmetic mean and the geometric mean of two positive numbers a and b is m:n. Show that a:b is equal to m plus m square under the root m square minus n square is to m minus under the root m square minus n square. Here we are given ratio of arithmetic mean to geometric mean. am is to gm is equal to m:n. So we know that arithmetic mean of two numbers a and b is a plus b over 2, and the geometric mean between a and b is under the root a into b. So a plus b over 2 over under the root ab under the root ab is equal to m is to n m over n. So under a plus b over 2 times under the root ab will be equal to m over n. After the cross multiplication, a plus b will be equal to 2 times under the root ab into m over n, and we will mark it as equation number 1. So also we know that a minus b whole square can be written as a plus b whole square minus 4ab, like a plus b whole square minus 4ab, a square plus b square minus plus 2ab minus 4ab. So a square plus b square minus 2ab, so it will be equal to a minus b whole square. So we know that the value of a plus b from equation number 1, we will substitute this value, and after the squaring we will get 4 times ab into m square over n square minus 4ab. We will take 4ab common, and we are left with m square 4ab into m square minus n square over n square. So in this way we can calculate a minus b. A minus b is equal to 2 times under root ab into m under the root m square minus n square over n, क्योंकि स्क्वायर रूट n का जो n स्क्वायर का n आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, अंडर रूट ए बी आ जाएगा. तो अब हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यूज आ चुकी हैं, एंड वी विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ वी विल ऐड इक्वेशन नंबर 1 and 2. So after the addition b will be cancelled out with minus b, so we are left with 2 times a is equal to 2 times under root ab over n into m plus under the root m square minus n square. ये कॉमन ले लिया गया है 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी ओवर एन. इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 जो है या 1 है, उनमें से इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी इंटू एम ओवर एन है. यहाँ से बी के आ गया 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी इंटू एम ओवर एन माइनस ए की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में से. वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी इंटू एम ओवर एन है, ये 1 टाइम माइनस अंडर रूट ए बी इंटू एम ओवर एन है. ये सब्ट्रैक्ट कर होके हमारे पास बच गया अंडर द रूट ए बी एम ओवर एन माइनस अंडर रूट ए बी ओवर एन इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अंडर द रूट. अब ए बी अंडर द रूट ए बी ओवर एन कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा एम माइनस अंडर द रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे. 3 and 4 दोनों की रेशियो ले लेंगे ए इज टू बी की, तो क्या बचेगा हमारे पास m प्लस अंडर द रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ओवर m माइनस अंडर द रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. सो a इज टू b विल बी इक्वल टू m प्लस अंडर द रूट m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज टू m माइनस अंडर द रूट m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. ये रिक्वायर्ड रेशियो थी. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20th है. इफ ए बी सी आर in AP, B, C, D are in GP and 1 over C, 1 over D, 1 over E are in AP. हम जानते हैं if A, B and C are AP, then 2 times B will be equal to A plus C. From this equation we can calculate the value of B.
b will be equal to a plus c over 2 and we will mark it as equation number 1. Now b, c and d are in GP. So if these three numbers are in GP, then c square will be equal to product of first and third term, means second square of the second term is equal to the product of first and third, and first is b and third is d. So c square will be equal to bd. We can calculate the value of d from here. D is equal to c square over b and we will mark it as equation number 2. Also we have given that 1 over c, 1 over d, 1 over e are in AP. So in this way 2 times 2 over 1 over d is equal to 1 over c plus 1 over e, and we will mark it as equation number 3. Now we will put the values of b and d from equation number 1 and 2 in equation number 3. We are to prove that a, c, e are in GP. That means c square should be equal to a into e. So from equation number 2 we will put the value of d in equation number 3. d की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 times b over c square is equal to 1 over c plus 1 over e. सो फर्दर b की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग. b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे. b की वैल्यू a प्लस सी ओवर 2 है, तो ये बन गया 2 टाइम्स a प्लस सी ओवर 2 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर c प्लस 1 ओवर e. यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस सी ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर c प्लस 1 ओवर e. ये सेपरेट कर देंगे डिनोमिनेटर को. 1 a ओवर सी स्क्वायर प्लस c ओवर सी स्क्वायर मीन्स 1 ओवर c. 1 ओवर c कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से और हमारे पास क्या बचेगा, a ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर e. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a e इज इक्वल टू c स्क्वायर. दैट मीन्स a c e आर इन GP. यही हमने प्रूव करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स. सीरीज इज 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स. सो ये वाली सीरीज जो है ये ना तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. सबसे पहले हमें इसको रिड्यूस करना है इन पर्टिकुलर फॉर्म, देन वी विल कैलकुलेट द सम ऑफ n टर्म्स. सो 6 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा अंदर ब्रैकेट में 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 अप टू सो ऑन n टर्म्स. 9 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.99 अप टू सो ऑन n टर्म. 9 को कैसे लिखा जा 0.9 को कैसे लिखा जा सकता है, 9 ओवर 10. 0.99 को लिखा जा सकता है 99 ओवर 100 एंड 0.999 को लिखा जा सकता है 999 ओवर 1000 प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स. अब 9 ओवर 10 को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस 1 ओवर 10 प्लस 99 ओवर 100 को 1 माइनस 1 ओवर 100. इसी तरह नेक्स्ट टर्म अप टू n टर्म्स. बाहर कैंसिल हो गए, 2 ओवर 3 बच गया है. नेक्स्ट जो 1 वाली टर्म्स है उनको अलग कर लिया है, 1 1 1 n टर्म्स को अलग कर लिया है, माइनस कॉमन लेके 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 100 जो था उसको 1 ओवर 10 स्क्वायर लिख दिया है. 1 ओवर 1000 जो था उसके लिख दिया है 1 ओवर 10 क्यूब. तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स जीपी बन गई है. इसमें पहली टर्म जो है वो 1 है और जीपी का फॉर्मूला आप सभी को पता है. एस एन क्या होता है, a इंटू 1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1. यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी a है और कॉमन रेशियो भी फर्स्ट टर्म 1 ओवर 10 है, कॉमन रेशियो भी 1 ओवर 10 ही है. तो इस सीरीज का सम जो है वो आ जाएगा 1 ओवर 10 इंटू 1 माइनस 1. ये फार्मूला दूसरा, इसको दूसरा फार्मूला भी यहाँ लगाया जा सकता है, मीन्स a इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस r. ये फार्मूला लगाया है a ओवर 1 माइनस r रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस r. और जो पहली है सीरीज हमारी AP थी, ये क्या हो जाएगा, n1 कितनी बार रिपीट हो रहा है n टाइम्स, तो n हो जाएगा 2 ओवर 3 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 इंटू 1 ओवर 10 माइनस 1 ओवर 10 रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस 10. सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो है वो क्या आ गया है, 2n ओवर 3 माइनस 2 ओवर 27 इंटू 1 माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस 1. तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड सम आ गया है, जो सीरीज उसने दी थी हमें उसका सम आ गया है. ये फाइनल आंसर है. नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास. कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने छोड़ देने हैं क्योंकि ये 2021 जो सेशन है
उसमें सीबीएसई ने कोरोना की वजह से जो सिलेबस को रिड्यूस कर दिया था, तो उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। 27th क्वेश्चन है, अ फार्मर बाय अ यूज्ड ट्रैक्टर, सेकेंड हैंड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000. He pays ₹6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installments of ₹500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? देखो टोटल कॉस्ट कितनी थी 12,000, अमाउंट उसने पे कर दिया 6,000, बाकी अनपेड कितना रह गया 6,000। एक इंस्टॉलमेंट की कीमत कितनी है, अमाउंट कितनी 500 है, तो 6,000 को 500 से डिवाइड करेंगे, टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी बन जाएगी 12 इंस्टॉलमेंट्स टोटल बन जाएंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, वो दिया है 12% पर एनुअल पर ईयर। हाउ नाउ इंटरेस्ट पेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड पे इंटरेस्ट कितना बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है P इंटू R इंटू टी ओवर 100। तो जब प्रिंसिपल कितना था 6,000 स्टार्टिंग में, 12% इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर मींस 1 ईयर ओवर 100, सॉल्व करके 720 आ गया है। ये इंटरेस्ट है, 500 रुपया उसने किस्त देनी है, उसके साथ 720 रुपया इंटरेस्ट देना है। टोटल अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड पे कितनी पे की उसने 1,220। इसी तरह सेकेंड ईयर के केस में अब जो है 500 रुपया उसकी जो अनपेड अमाउंट थी उसमें से निकल गया है, उसकी अनपेड रह गई है 5,500। तो इसमें इंटरेस्ट कितना बनेगा, P इंटू R इंटू टी ओवर 100 लगा के 660। तो अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए उसने कितनी पे की है, 500 उसकी इंस्टॉलमेंट थी, 660 इंटरेस्ट 1160 रुपीज सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे की है। इसी तरह से थर्ड के केस में उसकी अनपेड जो अमाउंट है वो 5,000 रह गई है, अमाउंट इंटरेस्ट 600 रुपये आया है, 500 रुपया उसकी किस्त थी, टोटल ही पेड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर अमाउंट कितनी है 1,100। इसी तरह से ट्वेल्थ जो ईयर है, ट्वेल्थ ईयर के एंड के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया उसने, वो उसकी लास्ट किस्त बची थी 500 रुपया, तो 60 रुपीज इंटरेस्ट बना और 500 प्लस 60 टोटल 560 रुपीज उसने पे किए। इस तरह से जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं टोटल, वो कितनी बनती हैं, जहाँ टोटल अमाउंट जैसे उसने पे की है वो कौन कौन सी की है, 1,220 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 1,160 सेकेंड, 1,100 थर्ड इंस्टॉलमेंट। इसी तरह से लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी पे की है उसने 560। तो ये एपी की फॉर्म है, और एपी में फर्स्ट टर्म 1,220 है, डी माइनस 60 है, क्योंकि इसकी हर बार 60 रुपीज इंस्टॉलमेंट कम होती जा रही है। टोटल टर्म्स हमारे पास 12 हैं, सम ऑफ जो हमारे पास टर्म्स है मीन्स 12 टर्म्स का सम कितना आएगा वो हमने यहाँ अप्लाई करना है फार्मूला, और टोटल अमाउंट निकालनी है कि उसने 12 किस्तों में कितनी अमाउंट दी है इंटरेस्ट के साथ। तो वो अमाउंट बनी है 10,680, 6,000 उसने कैश दे दिया था, टोटल उसको जो उसकी कॉस्ट है ट्रैक्टर की वो कितनी बनी है 6,680, उसको टोटल उसकी कॉस्ट बनी इंटरेस्ट वगैरह डाल के सारा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का डिस्कस करते हैं। शमशेद अली बाइज स्कूटर फॉर ₹22,000 sorry, he pays ₹4,000 cash and agrees to pay the balance in annual installments of ₹1,000 plus 10% interest on unpaid amount। तो ये कैसे है, ये टोटल अमाउंट उसकी 22,000 थी, स्कूटर की 4,000 उसने कैश दे दिया, 18,000 बाकी अनपेड बच गई। एक अगर 1,000 रुपया एनुअल किस्त देता है तो 18 किस्तें बनेगी, टोटल इंस्टॉलमेंट्स 18 बचेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10% पर एनुअम। और इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी डिस्कस किया क्वेश्चन। इंटरेस्ट फर्स्ट केस में इंटरेस्ट कितना पे किया, P इंटू R इंटू टी ओवर 100, 1,800 रुपये। किस्त कितनी थी 1,000, टोटल कितना पे किया 2,800। सेकेंड ईयर के केस में इंटरेस्ट कितना पे किया उसने 1,700, तो 5,000 रुपया उसने किस्त दी है, टोटल 2,700। इसी तरह से थर्ड ईयर के केस में 2,600। तो हमारे पास ये एक एपी बन गई है जो ईयर वाइज इसने अमाउंट पे की है 2,800, 2,700, 2,600। लास्ट में टोटल 18 टर्म्स है, तो कैसे हमने इसका सम निकालना है,
ये 18 टर्म्स हैं, AP है, पहली टर्म 2800 है, D कॉमन डिफरेंस -100 आ रहा है, और सम का फार्मूला लगा दिया हमने 18/2 मतलब जो हमारे पास फार्मूला है n/2 2a + n - 1d, ये फार्मूला लगा के हमारे पास आ गई कॉस्ट 35,100 और उस कैश कितना दिया था 4,000 रुपये। टोटल कितनी अमाउंट स्कूटर की उसको पड़ी 39,100, ये टोटल अमाउंट उसको पे करनी पड़ी। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A person writes a letter to 4 of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instructions that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that is cost 50 paise to mail one letter. The amount spent on the postage when 8th set of the letter is mailed. So इसमें एक पर्सन 4 लेटर्स लिखता है अपने 4 फ्रेंड्स को। तो इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट जो पर्सन है उसने 4 लेटर्स लिखी और आगे 4 ने 4 लिखी, तो वो हमारी हो गई 16। तो 16 को लिखा जा सकता है 4 स्क्वायर। इसी तरह से आगे हमारे पास जो 16 थे, जो 16 चार फ्रेंड्स थे, 4 ने आगे फिर 4 लिखी। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक जीपी बनेगी 4 स्क्वायर 4 क्यूब अप टू 8 टर्म्स तक जाना है उसने, क्योंकि उसने हमें ये कहा है कि ये 8th सेट जो है लेटर्स का वो मेल हुआ है और उसी के हिसाब से हमने कॉस्ट निकालनी। तो जो जीपी है सम ऑफ 8 टर्म्स क्या आएगा जीपी का a into r⁻n -1/r-1, जहाँ r कॉमन रेशो भी 4 है, फर्स्ट टर्म भी 4 है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आई हैं वो आई हैं 87,380 और एक जो कॉस्ट है मेल करने की वो 50 पैसे है, ₹1/2 है। तो इसको हमने टोटल कॉस्ट निकालनी थी, वो कितनी आ गई ₹43,690। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30th आपने खुद करना है, इसी तरह का है, सिंपल है। मैन्युफैक्चरर रिकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन विच कॉस्ट हिम ₹15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value at the end of the 5th year. एक मशीन की बात हो रही है, उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो 15,625 है और वो कहता है डेप्रीशिएट हो रही है 20%। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ नहीं लेते हैं तो हर साल उसकी जो कॉस्ट है वो कम होती जाती है। अब कितनी परसेंटेज के हिसाब से इसकी कॉस्ट कम हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है, वो यहाँ पर उसने बताया कि 20% उसकी कॉस्ट हर साल कम हो रही है। जैसे पहले इनिशियल कॉस्ट उसकी 50,625 थी, हमने उसका 20% निकाला, वो आ गया 3,125। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर उसकी जो कॉस्ट कितनी रह गई 15,625 में से 3,125 करके 12,500 बाकी उसकी कीमत बच गई। नेक्स्ट ईयर फिर 20% 12,500 का वो आ गया 2,500 और वो फिर माइनस किया हमने 12,500 से 2,500, तो 10,000 कीमत बची सेकंड ईयर के एंड के ऊपर। इसी तरह सेकंड ईयर फिर उसकी 20% कम हुई, 20% ऑफ 10,000, तो 2,000 कम हो जाना है। थर्ड ईयर के एंड के ऊपर उसकी कीमत रहेगी 8,000, फिर 8,000 का 20% कितना बना 1,600 रुपये, वो फिर कम हुआ है 8,000 से 6,400 बचा। अब फिफ्थ ईयर जो है उसमें 6,400 का 20% निकाला और वो कितना आ गया 1,280, और 6,400 से 1,280 माइनस किए तो लास्ट जो उसकी वैल्यू फिफ्थ ईयर के एंड के ऊपर बची वो बची 5,120। इसका अल्टरनेट मेथड भी है, आप अल्टरनेट वे से भी कर सकते हैं। वो कौन सा है, इसकी टोटल कॉस्ट 15,625 है, डेप्रीशिएट कितनी हो रही है 20%। इसका मतलब हर साल जो उसकी वैल्यू है वो 80% है ओरिजिनल का,
20% उसकी डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई वैल्यू, तो कितनी बची उसकी कॉस्ट, कितनी बची 80%। तो 80% ऑफ रीजनल मीन्स 80/100 मीन्स 4/5 ऑफ द रीजनल कॉस्ट। वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी फर्स्ट ईयर के एंड पे 15,625 का 4/5 इतनी कॉस्ट है उसकी। डेप्रिशिएट 20% होगी, 80% उसकी कॉस्ट है, 80% का मतलब 4/5 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ये अब फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर ये बची, फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर सेकंड ईयर कितनी होगी, इसका 4/5 मीन्स जो भी ये वाली कॉस्ट थी, ये वाली हमारे पास कॉस्ट थी, ये थी फर्स्ट ईयर की, ये फर्स्ट ईयर की है, फर्स्ट ईयर इसका 4/5 निकालिए। इसी तरह फिर फिफ्थ ईयर में क्या हो जाएगा 4/5 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और सॉल्व करके ये भी ₹5,120 ही आएगी। आगे बढ़ते हैं तो 32 लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टोटल 150 वर्कर्स हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर जॉब को कितने दिनों में सर्टेन नंबर ऑफ डेज में फिनिश किया है। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे, 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे। क्या सेकेंड डे क्या कर दिया, एक सिस्टम बनाया है कि टोटल 150 वर्कर्स हैं। वो कहता है अगर सेकेंड डे 4 वर्कर निकाल लिए जाएं, फिर थर्ड डे फिर 4 वर्कर्स को वहां से हटा लिया जाए काम से, इसी तरह से ये चलता रहे। तो ऐसे अगर काम करवाते हैं तो जो वर्कआउट है वो कितने दिनों में वर्क डन होता है कंप्लीट, 8 मोर डेज उसको ज़्यादा लगते हैं। अगर 150 के 150 वर्कर्स काम करते हैं तो मान लेते हैं n डेज लगते हैं। तो अगर इस तरीके से काम करते हैं कि 4 वर्कर सेकेंड डे, फिर थर्ड डे 4 और वर्कर्स कम कर लिए, तो उस तरीके से जो है वो n+8 डेज लगते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। टोटल वर्कर्स 150 हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं कि n डेज में कंप्लीट हुआ है। द वर्क डन इन 1 डे बाय 1 वर्कर कितना हो गया 1 यूनिट। हमने मान लिया है कि 1 यूनिट कंप्लीट करता है एक दिन में एक वर्कर। तो वर्क डन इन 1 डे बाय 150 वर्कर्स, 150 वर्कर्स ने एक दिन में कितना काम किया है 150 यूनिट्स। तो n डे में कितना काम किया है 150 इंटू n यूनिट, ये काम किया है टोटल 150 वर्कर्स ने। दूसरा तरीका है हमारे पास कि अगर हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट डे 150 वर्कर्स काम करते हैं, कितना काम किया उन्होंने 150 इंटू 150 यूनिट। सेकेंड डे 4 वर्कर कम कर लिए गए, 146 रह गए, 146 यूनिट्स काम हुआ। फिर 142 वर्कर रह गए तो 142 यूनिट्स काम हुआ। ये इस तरह से काम करते हैं तो n+8 डेज लगते हैं। तो 150 + 146 + 142 अप टू सो ऑन, ये टोटल वर्क डन है। पहले दिन 150 यूनिट हुआ, फिर 146 यूनिट हुआ, फिर 142 यूनिट हुआ, n+8 डेज ये काम चलता रहता है। तो ये क्या है, एक AP बन गई है। n+8 टर्म्स है इसमें, तो n टर्म्स होती तो n/2, तो यहाँ n+8/2 लगेगा, 2a + n-1 इंटू d। ये फार्मूला लगा के हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये आ गया है n+8/2 इंटू 272 - 4n। हमारे पास ऑलरेडी हम लोग वर्क डन निकाल चुके हैं 150n, तो यहाँ से भी वर्क डन ही आना है, दोनों को इक्वेट भी करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, सिंप्लीफाई करके 2 कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गया, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई 120n - 2n स्क्वायर प्लस 1088। ये भी वर्क डन है टोटल, और वो हमारे पास 150n भी वर्क डन था। ये वाली क्वाड्रेटिक को हमने सिंप्लीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया सारी टर्म्स को, और क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या बची 2n² + 15n - 544। 2 फैक्टर बने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, n² + 32n - 17n - 544 = 0। और अब हमने जस्ट इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमारे पास n की वैल्यूज 2 आ रही हैं, एक -32 एक 17। -32 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है। n 17 है तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे थे n+8 डेज, मीन्स 17 + 8 = 25 डेज टोटल लगे थे इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ये कंप्लीट हो गई है मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
सो सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।